Hey guys, this is अनिकेत भोसले और आज के इस वीडियो में I'll be talking about भोला in 3D। ये वीडियो भोला in 3D के लिए नहीं बनाया, ये वीडियो स्पेसिफिकली स्ट्रिक्टली 3D फैंस के लिए बनाया है। So let's talk about 3D। So before getting into the 3D criteria, let's do some basic information। ये फिल्म रिलीज होगी 30 मार्च को 2023 को and this will be the first Indian release of this year। This is not the first 3D film। दिस इज द फर्स्ट 3D फिल्म जो रिलीज होगी ये साल की। इस फिल्म को डायरेक्ट करा और प्रोड्यूस कर रहा है खुद अजय देवगन ने और ये एक ऑफिशियल रिमेक है तमिल फिल्म कैथी। आई थिंक इट्स कैथी। आई एम बैड एट प्रोनाउंसिंग साउथ इंडियन फिल्म नेम्स। So that's the basic information you should know before one last disclaimer कि ये जो सारे discussions रहने वाले हैं, जो हमारे points रहने वाले हैं, will be completely heavily dependent on the teaser. So we really don't have much to talk about, but I have some points to say. So let's talk about 3D now. So भोला का 3D teaser भी आया था और वो attach करा गया था भेड़िया के 3D showings के साथ. So कोई भी भेड़िया को 3D में देखने जाएगा तो they can watch the 3D teaser of भोला in the previews. This is not a new thing. Brahmastra did the same thing with Vikrant Rona के 3D showings. Avatar did the same thing with Doctor Strange of Multiverse of Madness के 3D showings के साथ. And I hope कि हमें भोला का जो official trailer रहेगा वो भी 3D में देखने मिले, which I 100% I'm sure कि देखने मिलेगा. So जब मैंने teaser 3D में देखा तो I felt two good things about it. A, the depth of field और दूसरा the title cards. डेप्थ ऑफ फील्ड के बारे में बात करूँ तो आई एम 100% श्योर इस फिल्म को नेटिव 3D कैमरा से शूट नहीं करा गया। इसको 3D पोस्ट कन्वर्जन्स के साथ 3D में रिलीज करा जाएगा। कंपेयर टू दैट द डेप्थ ऑफ फील्ड वाज एक्चुअली गुड। एवरी एलिमेंट हैड इट्स ओन डेप्थ ऑफ फील्ड। जैसे कि हम एक नेटिव 3D फिल्म का जो एक 3D इफेक्ट रहता है, मुझे वैसा थोड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आया। द 3D क्वाइट रिमाइंडेड मी ऑफ विक्रांत रोना हियर एंड देयर एज इट फेल्ट मोर कस्टमाइज्ड। कि इस जो टीजर था बड़ा कस्टमाइज लगा कि everything had its own depth of field and its own life. There were many scenes जहाँ पर it's like 3D should be, if the screen is on 0, the object subject should be around 3, but the object subject felt like 5 or 6 and I was like that scene doesn't even have that kind of depth of field, but they still kind of did those rotoscoping for the 3D conversion. I was like interesting. So the जितना भी 1.5 मिनट का जो 3D था it was nice. Talking about title card, अगेन मैंने बहुत सारे ट्रेलर्स देखे 3D में एंड द टाइटल कार्ड हैज जस्ट लाइक वन इफेक्ट कि अच्छा एक टाइटल कार्ड आया तो इतना ही बाहर, मतलब सारे टेक्स्ट एक साथ बाहर आएंगे, बट इसका नहीं है था। इसका था कि कुछ दो टेक्स्ट आ रहे तो एक आगे था एक पीछे था, एक ऐसे था, तो एवरी इवन टेक्स्ट हैड इट्स इंडिविजुअल डेप्थ ऑफ फील्ड। सो इट फेल्ट नाइस कि दे हैव डन सो मच कस्टमाइज्ड वर्क कि इन रहेगा, इन 3D लिखा है तो इन थोड़ा पीछे 3D थोड़ा आगे है। I like that kind of thing where they are actually putting some efforts for 3D. Teaser didn't had any pop-outs. I feel trailer will definitely have some pop-outs, like bullet हो सकती है या फिर त्रिशूल हो सकता है, I don't know. And let's see इन दोनों में से कुछ सच होता है क्या. And now we'll be talking about why I feel कि इस फिल्म का 3D अच्छा रहेगा, genuinely अच्छा रहेगा, क्योंकि one, they are promoting in 3D everywhere. They have promoted in the teaser का title, inside the teaser, on the title cards, on the posters. They have made it as a hashtag and it's everywhere where the marketing team is promoting in 3D, यानी कि 3D में रिलीज हो रहा है everywhere. Marketing team is actually promoting about the 3D, so I have strong feeling कि they might have worked on 3D for this film. Second point why I believe this film has genuine 3D. First film जो ओरिजिनल तमिल फिल्म थी कई थी, didn't had an 3D release. वो फिल्म 3D में रिलीज नहीं हुई थी, but this film it's a remake, it's an official remake, but फिर भी वो रिलीज हो रही है 3D में. Why? And I don't think that's an afterthought कि चलो रिलीज कर ही लेते हैं or to offer something new. I don't feel like that. I feel maybe developmental stage या फिर pre-production या फिर production के वक्त they decided कि नहीं हम इसको 3D में बना सकते हैं. We see a lot of potential in the script. तीसरा point मुझे थोड़ा lame लगता है, but I felt कि include कर ही लेते हैं. This film is directed by Ajay Devgan and Ajay Devgan has worked in a 3D film before called Tanaji the Unsung Warrior, and that film was actually pre-planned in 3D by the director. I know कि अजय देवगन ने इस फिल्म को डायरेक्ट नहीं करा, बट कैसे होता है if I'm the director or the DOP of the film, तो and if we have the plan of making a 3D film तो कैसे होता है I have to
टेल माई एक्टर्स कि आप अगर इज देयर अ सीन वेयर आई हैव टू पॉइंट आउट ऐसे, तो यू कैंट पॉइंट आउट ऐसे, यू हैव टू पॉइंट आउट ऐसे. यू हैव सर्टेन एंगल्स या फिर सर्टेन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट्स, या फिर आपको फ्रेमिंग करनी पड़ती कि ये कुछ चीज़ें ऐसे होनी चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, सो डेप्थ ऑफ फील्ड रहे. तो ये एक्टर्स को भी समझाना पड़ता है कि आपको कितना ऐसा हाथ बाहर लेना है, कितना नहीं लेना है. सो अजय देवगन हैज गॉन थ्रू दैट प्रोसेस ऑलरेडी इन अ प्रीवियस फिल्म. सो इफ ही इज डायरेक्टिंग एंड 3D भी प्री प्लानिंग था, तो ही नोज अ लिटिल बिट अबाउट 3D ऑलरेडी. सो इफ दिस फिल्म इज प्लान फॉर 3D, देन डेफिनेटली अजय देवगन ने कुछ ना कुछ अटेंशन टू डिटेल जरूर दिया रहेगा 3D के लिए. सो गाइज दोज वर माई पॉइंट्स. आई बिलीव ये जो भोलाई जो फिल्म है इसका 3D एक्चुअली जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग रहेगा, अच्छा रहेगा. आई माइट फॉल ऑन माई फेस बट आई रियली वुड लाइक टू वॉच ऑन दिस फिल्म कि इस फिल्म का 3D जेन्युइनली अच्छा रहेगा. एंड या लेट्स सी क्या होता है. ट्रेलर आना बाकी है, बहुत कुछ आना बाकी है बिफोर द रिलीज, सो वी कैन स्टिल डिस्कस अबाउट इट. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.